Hello students, in this video we'll talk about discovering truth. Important questions of discovering truth. So let's start the video. So before starting the video I would say that you like and subscribe my video. So first of all, to get more videos you will have to subscribe my video, and then after that if you like my video and if you find it helpful, you can like and share my video. So now we'll continue this video. There are some important questions. I have shared only some important questions. I'll make more videos on important questions, and if you have read the uh, chapter, then it's good, and if you haven't, then you can go on my link and on my channel, and you will find video of discovering truth, and you can watch there my video. Okay, so now I'm going to discuss some important questions. There are only few. Okay, so very first question, when you start your video, when you start your chapter, that time very first thing that is asked, that who was truth. So there are, you know you will get answer here. Just a minute. Okay, so I think now it is visible clearly. I have zoomed. Okay, so this is who was Tut. So Tut was, last heir of or ruler of a powerful family, powerful dynasty, and they ruled actually the Egyptian empire, that empire for centuries. So that is why he is special. His life and death both were special. His life was special, and of course his death was mystery. Both are wrapped in mystery. So you will have to remember this line, and you have to prepare that why his life and death both were wrapped in mystery. So you know why their life and death both were wrapped in mystery, because they people were interested to know about his death, at how, and most probably it was people used to think about his death, that most probably he was murdered or killed. Okay, but still people wanted to know the exact reason of his death, and his life was also full of mystery, wrapped in mystery. So actually people were interested to know about his life as well as his death. So here you must know what is the meaning of this. And now he took a new name, and after that what happened with him, he took a new name. As I told you that he used to, when he became the king, he took the throne. That time his name was Tutankhaten, and now his name, he changed his own name, Tutankhamun. Okay, so earlier as it was like by Amenhotep IV, he changed that everything, that god, he started worshipping god Aten, and then the meaning of Aten is sun disk. So you have to remember all these things if you are writing long answer, but here you need not to write all these things. Who was Tut? तो आपको पता है टुट कौन था, और वाई न्यू नेम डिड ही टेक, और ऑन एंड वाई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उन्होंने नया नेम क्यों लिया और क्यों ऐसा किया उन्होंने। तो उन्होंने क्योंकि वो जो है एमन, यहाँ पर एमुर लिखा हुआ है, एक्चुअली एमन है यहाँ पर। तो आप इसको जस्ट अ मिनट, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर एमर नहीं है, यहाँ पर एमन है, एन है, आर की जगह पर एन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। वर्शिप ऑफ एमुन, द एंशियंट गॉड। तो एक्चुअली रेस्टोरेशन जो था वो उस टाइम पर ये लोग रीस्टोर कर रहे थे, तो रेस्टोरेशन, रीस्टोर ऑफ ओल्ड वेज, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो टुटखैंटन था उसने एटन गॉड को हटा करके एमुन गॉड की वर्शिपिंग दोबारा शुरुआत कराई और दोबारा चीज़ों को रीस्टोर किया। दैट इज़ वाई ही चेंज हिज ओन नेम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसने अपना नेम क्यों चेंज किया था और कब चेंज किया था, व्हेन ही टुक द थ्रोन, और क्यों चेंज किया था। तो आप जब क्यों का क्वेश्चन आएगा तो आप एमेनहॉटप IV वाला आंसर कर सकते हैं कि एमेनहॉटप ने इनकी इमेजेस को स्मैश करा दिया था और इनके जो टेम्पल्स थे वो क्लोज करवा दिए थे। तो उसके बाद में जब टुट ने ही टुक द थ्रोन, देन ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एमोन अगेन, एंड फिर उन्होंने दोबारा से ही सारे ओल्ड वेज को रीस्टोर किया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड टट
die, where was he led to rest? कहाँ पर उसकी डेथ हुई थी, कब हुई थी? So when he was at the age of teen, or he was a young ruler, तो at the age of teen, वो टीन एज का था when he was died. And led to rest कहाँ पर था? I told you, वैली ऑफ द किंग. वैली ऑफ द किंग क्या है, जो मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. वैली ऑफ द किंग क्या है? वैली ऑफ द किंग वहाँ पर जहाँ पर किंग्स को बरी किया जाता था. ओके. व्हेन वाज हिज मम्मी डिस्कवर्ड? कब? आई टोल्ड यू, इन 1922 बाय हॉवर्ड कार्टर. ओके. ओके. नाउ व्हेन वाज टुट्स बॉडी, व्हेन वाज टुट्स डेड बॉडी सब्जेक्टेड टू अ सिटी स्क्रूटनी एंड वाई? कब? ये आप बताओगे किसने किया, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. इवन आप मुझे आंसर नहीं करते हो, फिर भी आई नो कि पता नहीं आंसर करना पसंद नहीं क्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आंसर करना चाहिए आई थिंक. तो टुच की जो डेड बॉडी थी, कब उसको सीटी के लिए, सीटी स्कैन के लिए, ये ध्यान रखना है. 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया, उस पर नहीं ध्यान रखना है. जाही हवास ने जो सीटी स्कैन के लिए जाते, वो कब किया था, किस कब, 1922 के कितने ईयर्स बाद में, और क्यों किया था, ये आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किंग टुट्स डेथ वाज अ बिग इवेंट, वी ऑल नो दिस, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड. क्यों ऐसा था कि किंग की टूथ की डेथ जो थी वो एक बिग इवेंट थी? तो यू नो, वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली, ऑफ हिज डायनेस्टी. उसके बाद में कोई भी नहीं था, और उसकी जो डायनेस्टी थी, उसकी जो फैमिली थी, उन्होंने काफ़ी साल तक, ईयर्स तक वहाँ पर क्या किया था, रूल किया था. सो इट वाज अ ग्रेट इवेंट. बट, और उनकी डेथ के बारे में, बट हाउ ही पास्ड अवे, इट वाज एक्चुअली मिस्ट्री. उनकी डेथ कैसे हुई थी, एंड व्हाट फॉलोड हिज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस. तो दैट इज़ वाई लोग जो है उनको बार बार उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकाल रहे थे. ओके. ओके. अकेन एटन, जो अकेन एटन था, याद है, एमेनहॉटेप 4, वो अकेन एटन वेंट अ लिटिल वैकी. तो उन्होंने क्या क्या किया था, एंड व्हाट डिड ही डू टू अर्न सच सेंसर. तो अभी आपको ये बताना है कि अकेनऑटन ने क्या किया था, किस तरीके का था, वो कौन था. ये सारी आंसर जो है आपको इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि अकेन एटन ने क्या क्या किया था. उन्होंने गॉड चेंज करवा, मतलब एटन की जगह पर, एमन की जगह पर एटन की पूजा करना शुरू कर दिया था, और इमेजेस उनकी स्मैश करा दी थी, एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके. नाउ व्हेन अ प्रोफेसर, मैंने कई बार बोला भी है, व्हेन अ प्रोफेसर एक्स-रे टुट्स मम्मी व्हाट फैक्ट्स वर रिवील्ड. तो जब प्रोफेसर, याद है, आफ्टर 40 ईयर्स, देखो आफ्टर 40, 1922 ही वॉज डिस्कवर्ड, बट आफ्टर 40 ईयर्स एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उनको दोबारा से जो है एक्सरे किया था, एंड देन ये रिजल्ट निकला था, लाइक ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग. ओके. वाई वॉज द मम्मी सीटी स्कैन 2, उनका सीटी स्कैन क्यों हुआ था? तो सीटी स्कैन जो है वो 2005 में हुआ था. किसने किया था, आपको पता है किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? जाही हवास ने किया था. टुट्स एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एज वेल एज द रीज़न. तो एक्चुअली वो जानना चाहते थे, वो एक्चुअली साइंटिफिक जो प्रूफ थे, दे वांटेड टू नो दैट, कि नहीं, इनकी डेथ वाकई में ऐसा हुआ है क्या कि उनकी फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. तो उनकी फैक्ट के बारे में जानना चाहते, दैट इज़ वाई उनका सीटी स्कैन किया गया. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हेन डिड टुट डाई, दोबारा हो गया. व्हाट प्लेस वाज चूजन टू ले हिज कॉर्प्स अगेन. व्हाट वाज हिज मम्मी, व्हेन वाज हिज मम्मी डिस्कवर्ड, इन 1922 बाय जाही हवास. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स मैंने नहीं दिए हुए हैं. व्हाट रोल डिड, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये आंसर्स आने चाहिए. व्हाट रोल डिड साइंस प्ले इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टुट्स. ऑफकोर्स साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ के बारे में. साइंटिफिक प्रूफ हमें वहीं से मिलते हैं. लाइफ एंड डेथ अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. तो यहाँ पर आपको साइंस का रोल देना है कि क्या रोल था. देखो, उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, ये किया, वो किया. तो एटलीस्ट सीटी स्कैन के बाद में हमें ये तो पता चला कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो लोग सोच रहे थे कि उनकी फ्रंट रिब गायब है, ये है, वो है. तो है ना, तो ये साइंस एटलीस्ट हमें क्लियरली बता देता है कि रीज़न क्या रहा होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट डू वी नो
From the history discovering truth, the saga continues about the materialistic attitude of a man. Yes, तो इसमें आपको पता चला है कि जब हावर्ड कार्टर ने इनको डिस्कवर किया था तो वो कितने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, है ना, कि उन्होंने उनको चिजल्ड अवे हिम टू गेट दैट गोल्ड, है ना। और उसके बाद में तो ये चीज़ है कि हाँ, उस टाइम पर काफ़ी लोग मटेरियलिस्टिक होते थे। इट शोज़ दिस थिंग। ओके, नाउ हाउ वॉज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक ह्यूमन वाइजर। कैसे हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और हमें हिस्ट्री पढ़ के क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, एक्चुअली हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट क्यों है। क्योंकि हिस्ट्री हमें कहते हैं ना कि हमें पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, या हम पुराने तरीके जो होते हैं आप जानते हो वो बहुत अच्छे होते हैं, हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं, या कहते हैं पुराना एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको आगे के लिए बेटर करता है, ठीक है। तो आप देखते हो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो हिस्ट्री हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो आपको इसमें ये आंसर लिखना, हाउ डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक ह्यूमन वाइजर, और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। तो इसलिए ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दिए, दे आर लॉन्ग क्वेश्चंस, यू हैव टू प्रिपेयर इट योरसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज़ माय शॉर्ट वीडियो फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टुट। सो नाउ like and share my video, subscribe also my channel and like my video of course। अगर आपको लगता है कि मैं important चीज़ें बताती हूँ तो you must like, don't forget to like my video and सब share of course। अगर आपके कोई friend हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए सो दैट कि इसका बेनिफिट लोगों को मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए अगर कोई आपकी एडवाइजेस हों तो डेफिनेटली, कुछ सजेशंस हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।